Good morning, everyone. Today I am going to explain lesson 5, and the chapter name is Iris Stew by the Riverside. This is the story of three friends who started a journey by boat down the river of Thames. And this story is taken by three men in boat, and which is written by Jerome K. Jerome. And in this story also have a dog whose name is Montmorency. Okay, let's start what happened in this story. Because they decided to make good supper for them. Okay, we got out at Sonning and went for a walk round the village. यानी हम लोग नाव से उतरे और कहाँ उतरे? सॉनिंग में. If you stop at Sonning, put up at the bull behind the church. It is a veritable picture of an old country inn. यानी कि जहाँ पे सॉनिंग में वो उतरे वो क्या है? एक गांव है. With a green square courtyard in front where an on sits beneath the trees. जहाँ पे द ओल्ड मैन गैदर टू गॉसिप ओवर विलेज पॉलिटिक्स. जहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक स्क्वायर शेप में बना हुआ एक चबूतरा है जिसपे बैठ करके बूढ़े लोग क्या करते हैं? उस गांव के राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं. We roamed about sweet Sonning for an hour or so and then it being too late to push on past reading. यानी कि वो वहां पे पूरे 1 घंटे तक वहां पे टहलते हैं, फिर उन्हें वापस वहां आ जाना पड़ता है रेडिंग, जहां पे वो उतरे रहते हैं. We decided to go back to the Speckles Island and put up there for the night. वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो स्पेकलेक आइसलैंड में रुकेंगे और वहीं आज रात बिताएंगे. It was still early when we got settled, and George said that as we had plenty of time, it would be a splendid opportunity to try a good slap-up supper. जब वो वापस आते हैं तो उनके पास एक जॉर्ज कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम क्या बना सकते हैं? एक अच्छा सा भोजन अपने लिए. He said he would show us what could be done up their river in the way of cooking, and suggested that with the vegetables and the remains of the cold meat and general odds and ends we should make an Irish stew. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो उनके पास सब्जी है, जो मीट है, जो बचे हुए सामान है, उनसे क्या बनाएंगे? आयरिश स्ट्यू. दिस इज अ डिश. It seemed a fascinating idea. वो उन्हें बहुत अच्छा लगा. George gathered wood and made a fire. George ने क्या किया? लकड़ी इकट्ठा किया और आग जलाया. And Harris I started to peel the potatoes. हैरिस और मैं यानी कि राइटर जिनका क्या नाम था? जेरोम. वो क्या करने लगे? आलू को छीलने लगे. I should never have thought that peeling potatoes was such an undertaking. और वो कहते मैंने अभी कभी नहीं सोचा था कि आलू छीलना इतना मुश्किल काम हो सकता है. The job turned out to be the biggest thing of its kind that I had ever been in. यानी कि उन्हें आलू छीलना काम अब तक का सबसे मुश्किल काम लगा. We began cheerfully, one might almost skitchily, but our light-hearted was gone by the time the first potatoes was finished. यानी कि हम लोग उस काम को बहुत ही सीरियसली कर रहे थे और एट लास्ट एक आलू पूरा छिल करके खत्म हुआ. Okay, the more we peeled, the more peel there seemed to be left on. By the time we had got all the peel off and all the eyes out, there was no potato left, at least none worth speaking of. यानी कि हमने आलू छीलते रहे और अंत में क्या बचा? कुछ भी नहीं. George came and had a look at it. It was about the size of peanut. मतलब एक आलू को उन्होंने इतना छील दिया कि वो किसके बराबर हो गया? मूंगफली की तरह. He said, "Oh, that wouldn't do. You are wasting them." वो क्या तुम्हारे उसने क्या कहा कि तुम लोग आलू बर्बाद करो. You must scrap them. तुम्हें बस उससे क्या करना? ऊपर के छिलकों को निकालना है. So we scrapped them and that was harder work than peeling. अब उसको स्क्रैप करना छीलने से भी ज्यादा कठिन काम था. They are such extraordinary shaped potato, all bumps and warts and hollows. यानी कि उसमें क्या थे? warts थे, लम्स जो होते हैं उसके स्किन पे गड्ढे थे, लम्स थे. वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था. We worked steadily to 5 and 20 minutes. यानी टोटल उनको आलू छीलने में कितना लगा? 20 मिनट. एंड डिड 4 पोटैटोज. और उतने में 25 मिनट लगे जिसमें उन्होंने कितने पोटैटोज को छीले? ओनली 4. We said we require the rest of the evening for scrapping ourselves. उन्होंने कहा कि बाकी सब टाइम में हम लोग अपने आप को छीलेंगे.
I never saw such a thing as potato scraping for making a fellow a complete mess. यानी कि उन्होंने आलू छिलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा, पूरा मैसअप हो गया. It seemed difficult to believe that the potato scraping in which Harris and I stood half smothered could have come off our potatoes. और जब हम लोगों ने पोटैटो छील के खत्म किया तो उसमें से थोड़ा बहुत पोटैटो बचा था. George said it was absurd to have only 4 potatoes in an Irish stew, so we waste half a dozen or so more and put them in the pot without peeling. वो कहता है कि हमने एक दर्जन आलू में से बस 4 आलू बचा है. अब जो जितना भी आलू बचा हुआ है उसको हम लोग छीलेंगे नहीं, बल्कि उसी तरह जो डिश वो बना रहे थे उसमें डाल देंगे. वी ऑल्सो पुट इन अ कैबेज एंड अबाउट हाफ अ पैक ऑफ पीस. वे क्या कहते हैं कि उसमें हम कैबेज भी डालेंगे, अ पैक ऑफ पीस यानी मटर भी डालेंगे. जॉर्ज स्टेट ऑल अप एंड देन ही सेड दैट there seemed to be a lot of room to spare, so we overhauled both the hampers and picked out the odds and ends and the remnants and added them to the stew. यानी उनके पास जितना भी मसाले थे और सारी चीजें थे उन्होंने उसी में डाल दिया. There were half a meat pie and bit of cold boiled chicken left. उनके पास मीट का एक टुकड़ा था और कोल्ड बॉइल्ड चिकन था, उन्होंने भी उसमें डाल दिया. The judge found half a tin of potted salmon and he put them into the pot. जो pot में half potted salmon था. जो potted salmon क्या होता है, फिश होता है, उसको उन्होंने भी उसमें डाल दिया. यानी मीट, चिकन, पोटैटो और फिश सारा चीजें उन्होंने उसमें डाल दिया. आई फॉरगेट द अदर इंग्रेडिएंट बट आई नथिंग वॉज वेस्टेड. मैं दूसरे चीजों के बारे में भूल गया, लेकिन मैं किसी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहता था. आई रिमेम्बर दैट टुवर्ड द एंड Montmorency, who had evinced great interest in the proceeding throughout, strolled away with an earnest and thoughtful air, preparing a few minutes later with a dead water rat in his mouth. जैसा कि हमारा कुत्ता हमें इतने देर से ऑब्जर्व कर रहा था, वो भी अपनी तरफ से कुछ उसमें डालना चाहता था, और उसके लिए उसने क्या लिया था अपने मुंह में, वाटर रैट यानी कि पानी का मरा हुआ चूहा, which he evidently wishes to present as his contribution to the dinner, whether in a sarcastic spirit or with a genuine desire to assist, I cannot say. यानी कि वो भी अपनी तरफ से उसमें अपने खाने के लिए कुछ डालना चाहता था, वो हमारी हेल्प करना चाहता था, या फिर अपने खाने के लिए, या फिर डर के ना, तो वो मैं नहीं कह सकता. We had a discussion as to whether the rat should go in or not. हम लोग डिस्कस करने लगे कि क्या चूहे को भी उसमें डाल दिया जाए. हैरी सेड दैट ही थॉट इट वुड बी ऑल राइट मिक्स्ड अप विद द अदर थिंग्स एंड दैट वेरी लिटिल. फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है, हम इस चूहे को भी इसमें मिक्स कर देते, ये बाकी चीजों के साथ मिक्स हो जाएगा. ही सेड ही हैड नेवर हर्ड ऑफ वाटर रैट्स इन आयरिश स्टू एंड ही वुड रेदर बी ऑन द सेफ साइड एंड नॉट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट. जॉर्ज क्या कहता है कि मैंने कभी आयरिश स्टू में चूहे को नहीं डाला, मैं एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता. हैरी सेड इफ यू नेवर ट्राई अ न्यू थिंग हाउ कैन यू टेल व्हाट इज इट्स लाइक. तो हैरिस कहता है कि जब तुमने नई चीजें ट्राई ही नहीं की तो कैसे कह सकते हो तुम ये नहीं सही है. इट्स मैन सच एज यू दैट हैम्पर द वर्ड्स प्रोग्रेस. यानी कि अगर जब तक हम नई चीजें ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम उसे करेंगे कैसे. थिंक ऑफ द मैन हु फर्स्ट ट्राइड जर्मन सॉसेज. वो कहता है उस आदमी के बारे में सोचो जिसने सबसे पहले जर्मन सॉसेज बनाए थे. इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस दैट आयरिश स्टू. वो कहता है कि ये आयरिश स्टू में ग्रेट सक्सेस था. आई डोंट थिंक एवर जॉयड अ मील मोर. और हम लोग मील को ज्यादा एंजॉय नहीं करना चाहते थे. देयर वॉज समथिंग सो फ्रेश एंड पिक्वेंट अबाउट इट. इसमें बहुत चीजें फ्रेश हैं और कोई स्पाइसी टेस्ट भी होगा. One's palate gets too tired of the boring old things. Here was a dish with a new flavor, with a taste like nothing else on earth. वो कहता है कि चलो ये इसकी महक ही बहुत ये करना हमारे लिए एक अच्छा चीज होगा, और ये एक नए फ्लेवर का डिश होगा. And it was nourishing too, और ये हेल्दी भी होगा. और जॉर्ज said there was good stuff in it. अब इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं. The peas and potatoes might have been bit softer, but we all had good teeth, so that did not matter. Such as for the gravy, it was a poem, a little too rich perhaps for a weak stomach, but nutrients. क्या कहता है कि हमने जो बनाया है वो हो सकता हो आलू मटर कुछ कच्चे हो, लेकिन हमारे दांत मजबूत हो उसे खाने के लिए. और वो एक पोएम बोलता है, a little too rich perhaps for a
वीक स्टमक बट न्यूट्रियस। वो कहता है कि हो सकता है वो खाना हमारे लिए अच्छा हो, हमारे वीक स्टमक को जो हमें भूख लगी है उसको हो सही कर दे और हमारे लिए न्यूट्रियस भी होगा। ओके, तो देखा आपने एक आयरस स्ट्यू बनाने के लिए तीनों मित्रों ने क्या क्या उसमें मिलाया और उसमें कुत्ता भी अपना भागीदारी दिया। ओके, now I'm explain this chapter. Your homework is to fill your book exercise. Okay, have a good day. Bye.